Another thing I want to say, I was thinking because I was sitting there paying attention and all the thinking, because the next devotee who is coming here, his name is Deena Dayaal. He's coming from Delhi. And if you know, Delhi brought here 70 people. 70 devotees came from Delhi. I think it's very strange that 70 devotees came from Delhi. They had some secret plan or something, but I will talk about this later. Yes, 70. So this devotee who is going to speak next, his name is Deena Dayaal. He's the director of Bhakti-vriksha Delhi. He expanded Bhakti-vriksha Delhi, but also he attended to many part-time programs. He has many duties in preaching. And thanks to his work and dedication, we have in Delhi 81 Bhakti-vriksha groups. Yes. This month we're going to visit all the groups. The 81 groups, he gives seminars, he gives Bhagavad-gita classes, he attends to ceremonies, Shiksha ceremonies, so he's very active in expanding the congregation. As you know, 5,000 years ago, in the Delhi where Delhi is now, used to be another city, and this city was the capital of the war. Do you know the name of the city? Hastinapur. You know Hastinapur used to be Yudhishthira Maharaj. Do you know Yudhishthira Maharaj? From Yudhishthira Maharaj or Hastinapur, Yudhishthira Maharaj conquered the whole world. After Yudhishthira Maharaj, who came? Parikshit Maharaj, and he also conquered the whole world. I think the Delhi devotees are coming here, 70 devotees, because they have a secret plan to use Bhakti-vriksha and when they conquer the whole world. I figured it out when I was sitting there, so if you want to conquer the world yourself, better you sit down and listen to this nice Prabhu what he has to say. Thank you very much. 1 second more. We have a nice translator here. How is your name, Prabhu, please? My name is Shyam Sundardas. Again, please? Shyam Sundardas. Shyam Sundardas. A big applause for him because he is I want to offer him a nice seat, please. We want to offer you, Prabhu, sit here. Please, sit. You will need it, please. Sit down with the mic, Because the next Prabhu doesn't speak any English. And he needs some assistance. He speaks Hindi. So, can you kindly translate to some English for all the audience? He will try his best. So, all of you are going to give him some blessings, special blessings. Arrivo! Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks, Prabhu. First of all, I thanks His Grace Conveyed Prabhu. They are nice, so nice, such a nice programs. Bhakti-vriksha Still speaking in English only, yeah? तो मैं हिंदी में बोलूँगा जरा क्योंकि सभी लोग हिंदी समझते हैं तो जिस भाषा में समझते हैं उसमें ज़्यादा आनंद आता है So I will try to speak in English only because that is language most people understand and I feel more comfortable speaking in Hindi. तो बहुत बहुत धन्यवाद इस देश को अंते को कितना सुंदर कार्यक्रम किया आपने और हम सब लोगों को बुलाया So I will say thanks to Mr. Conveyed Prabhu for organizing such a nice program here. भक्ति-वृक्ष कार्यक्रम का मतलब ही है हम सभी मिल करके चाहे वो जैसे वैसे अभी तो सेपरेट प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूथ प्रोग्राम्स है गर्ल्स यूथ प्रोग्राम है ये है वो है लेकिन मुझे सबसे अच्छा भक्ति-वृक्ष में क्या लगा ये शुरू करने का क्योंकि हम लोग दिल्ली मंदिर में शुरू करना चाहते थे कार्यक्रम क्योंकि मंदिर तो बन गया बहुत बड़ा लेकिन एक बढ़िया प्रोग्राम शुरू होना चाहिए So the Bhakti-vriksha program, the best thing I like about the Bhakti-vriksha program is that actually there are many programs going on, but there is not a program where all things can be combined into one program. क्योंकि संसार में तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन भक्ति में भेद होना अच्छा नहीं है। This program has many differences, but there should not be any differences in the devotional service. सबसे अच्छा ये लगा इस प्रोग्राम में सभी लोग भाग ले सकते हैं, बच्चा भी ले सकता है और बुजुर्ग भी ले सकता है और माताएं भी ले सकती हैं, प्रभु जी भी ले सकते हैं, लड़का लड़की सब एक साथ गैदर हो सकते हैं। The best thing I like about this program is that everyone can participate in this program, from a child to an old person to Mataji's to Prabhuji's, the whole family. In fact, each section of the society can participate in this program. तो इससे क्या होता है हमारे अंदर जब हम एक साथ मिलते हैं पूरा परिवार
या दूसरा परिवार या तीसरा परिवार या लड़का लड़की कोई भी इस तरह से, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन लाइफ नहीं होता है, वो पहले ही खत्म हो जाता है। पहले ये प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम, उससे क्या होता है कि यहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता है, दूसरा आदमी सोच में पड़ जाता है। तो मैं बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। तो मैंने हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो मेरे गुरु महाराज हैं, मैंने उनसे आज्ञा ली। मैंने कहा महाराज यहाँ पर भक्ति वृक्ष कार्यक्रम शुरू करें। महाराज बोले बिल्कुल करो करो। So I took permission from my Guru Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, that I should start this program there, and he was very happy and he encouraged me to start this program in Delhi. तो महाराज हमेशा बोलते थे कि महाराज ने कभी मना ही नहीं किया किसी भी चीज के लिए। महाराज ने बोला करो और बढ़िया से इसको करो। तो एक साल के लिए मैंने और कृष्ण प्रभु जी ने, जो पहले से उनको पता था भक्ति वृक्ष के बारे में, मुझे भक्ति वृक्ष के बारे में पहले पता नहीं था उतना, इतना जरूर था कि चैतन्य चरितामृत में मैंने पढ़ा था भक्ति का वृक्ष। तो सीधे जब वो मैनुअल मिला तो उस वक्त इंग्लिश में था, बाद में उसको हिंदी में फिर हिज ग्रेस सुभाष प्रभु जी यहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं सुभाष प्रभु जी, आप खड़े होंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी ने और उनकी पत्नी ने भी, उनकी पत्नी भी है यहाँ पर, और भी एक माता जी हैं, द्रौपदी रानी माता जी भी थे ना उसमें द्रौपदी रानी माता जी भी और 2-3 और लोग, सबने मिल करके उसको हिंदी में बनाया है। So earlier I was not so much familiar with this Bhakti-vriksha program, but with the help of His Grace BVConv Prabhu, I could understand this program. He introduced this program to me, and with the help of His Grace Subhash Prabhu, we translated all the manuals in Hindi and we started this program in Delhi. तो हम लोगों ने 1 साल का पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, 1 साल के लिए। पहले ग्रुप शुरू नहीं किए, पहले कि भक्ति वृक्ष है क्या, और उसके मैनुअल से सारी चीजें, पूरा मैनुअल भी पढ़ा और उसको समझाया भी। और बहुत सारे उसमें मैं ऑलरेडी क्लास करता था, तो उसमें जितने भी क्लास में लोग आते थे वो भी, और भी भक्त लोग जिसमें विचित्र कृष्ण प्रभु भी आदमी है वो भी बीच में कभी कभी आते थे, और कृष्ण प्रभु भी और भी भक्त लोग तो आए। और इस प्रकार से 1 साल तक हम लोगों ने उसको पहले पूरा सिखाया, और उसके बाद में फिर 1 साल के बाद में जो 15 लोगों से 15 ग्रुप जो है दिल्ली में शुरू किए। Initially we had 1 year training period for this program, where we tried to understand how this whole program is conducted. I was already conducting classes on Srimad Bhagavatam and other things, but this program gradually we began to understand. And then initially we trained 15 people who started these programs in various parts in Delhi. और सबसे पहले माइंड में यही आता है कि ये प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो क्योंकि मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ा हूँ और आदि लीला में सब कुछ मेंशन है कि किस प्रकार से चैतन्य वृक्ष, जैसे कि प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये चैतन्य वृक्ष की ये एक शाखा है। तो उसमें सब कुछ बताया है, कैसे नित्यानंद प्रभु जी के ग्रुप, कैसे अद्वैत आचार्य जी के उसमें कितने नेम, बहुत सारे नाम, कितने भक्त लोग उनसे जुड़े थे। और ये भक्ति वृक्ष का जो पैटर्न था आपने देखा भी होगा, भक्ति वृक्ष, इसमें 10 पूरे 10 पैटर्न हैं। बोल दीजिए। So at the beginning this program, the congregation preaching in Delhi accepted Bhakti-vriksha program preaching format given by Sri Bhakti-vinod Thakur, and it is also mentioned in the Chaitanya Charitamrita. And even Sri Prabhupada mentioned that ISKCON movement is a branch of Sri Chaitanya's tree. So this is what is saying that this program is an authorized program, which is authorized by scriptures also. तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अनेक जितने भी ग्रुप लीडर्स हैं, जो भी चैतन्य महाप्रभु ने जैसे दिखाया गया था, चैतन्य महाप्रभु का पूरा वृक्ष चैतन्य महाप्रभु के चरणों में 9 सन्यासी जाके दिखाया इस वृक्ष को प्रभु जी ने। तो सारे के सारे जो भी नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य ऐसे करके उनके संग कितने, तो जब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु रामकेली में जब आए तो आपने पढ़ा होगा कि महाप्रभु को देखने के लिए लाखों भक्त उमड़े, वहां पर लिख रखा है। कैसे उमड़े होंगे वो, क्योंकि उस वक्त भी भक्ति वृक्ष चल रहा था, इसीलिए तो मेंशन है। तो ये इसीलिए बात माइंड में आई। तो उसमें जब बताया था इसमें कि फर्स्ट ग्रुप सर्वर लीडर, दूसरा सेक्टर सर्वर लीडर, तीसरा सर्किल सर्वर लीडर, चौथा महासर्किल महाचक्रपति, मालापति, मंडलपति,
महामंडलपति, तरंगपति, प्लवनपति और महाप्लवनपति। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज 8वीं स्टेज तक पहुंच गए थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं कम से कम 3000 ग्रुप, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिवोटी होते हैं इस ढंग से, और 500 कम से कम नाम हटा कार्यक्रम भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शुरू किए। तो ये सब सुन करके, पढ़ करके, देख करके एकदम फिक्स हो गया माइंड कि ये प्रोग्राम एकदम क्या है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है। और जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 10-5 मिलिया द्वारे द्वारे बसिया कीर्तन करिया हाथे ताली दिया, तो और फिक्स हो गया कि ये इस ढंग से छोटा परिवार सुखी परिवार, 15 लोग है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उसको आदमी देख सकता है बढ़िया से, एकदम माइंड में फिक्स हो गया। और फिर न इधर देखा न उधर देखा, और सीधे बहुत सारी उसमें बाधाएं भी आई हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमारा गोल ठीक है, लक्ष्य ठीक है, तो क्या होता है, कोई चिंता नहीं, सबको हिंदी समझ में आ रही तो किसकी जरूरत ही क्या है। So Prabhu is saying that usually was a little skeptical about how this thing is going to work and not going to work. But gradually when he began to, read Chaitanya Charitamrita and various scriptures that he studied, he could realize that this is actually the correct way of approaching preaching. And then he also talks about Chaitanya Mahaprabhu's visit in Ramgiri when lakhs of devotees visited him. So that was only possible because already there was a huge congregation preaching program already going on in Bengal. And that is what inspired him to take this whole program very seriously. And then he decided not to see left and right, but to remain fixed on this program only. See that a small family is a happy family. So the Bhakti-vriksha is based upon having small groups. A small family is a happy family, a peaceful family. तो क्योंकि हम लोग किसी कार्यक्रम को किस लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, न कि उसको ड्राइनेस के लिए, सूखा बनाने के लिए। पता चला एक चीज हो रही है, एक ही चीज हो रहा है और कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा है, कोई आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि व्यक्ति पहले दिन से ही इस संसार में कोई सुनना नहीं चाहता है, सब बोलना चाहते हैं। ये प्रोग्राम कितना बढ़िया है, बोलो फर्स्ट डे से ही बोलो। The first principle is that everybody in this world wants to be happy and everybody wants to have rest, but nobody wants to have anything dry. So this program is an opportunity where all the people have desire to speak. So this is a good opportunity for all the people joining this program to speak. So we will encourage people, you want to talk, please talk as much as you can. तो जैसा कि हृदय कांवरेज प्रभु जी ने बताया था कि JPS ग्रुप, कोई ये ना सोचे कि जयप्रकाश महाराज जी के ग्रुप ये उन्होंने भी शुरू किया, तो वो कौन है, वो भी तो प्रभुपाद जी से जुड़े हैं ना। और शुरू कहाँ से किया है, पूरा शास्त्र को लेकर के। और क्योंकि अकेला व्यक्ति तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं भी अकेले फलों को बांट नहीं सकता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तो अकेला ऐसा तो नहीं कि वन मैन शो, मैंने ही पैटर्न बनाया, मैं ही करूंगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबको जो जोड़ सकता है वही कृष्ण भावना अमृत में अग्रणी है, वही आगे बढ़ सकता है। जो सबको नहीं ले सकता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैंने अनुभव किया। So he says, saying one of his realizations, he says that this program was started by Jayapataka Maharaj is not that he's the only person who is doing it. We are all, actually we all are, in favor of him doing this program, and him being a Srila Prabhupada disciple, this program is very much authorized and in line with the previous acharyas. धन्यवाद। तो आगे बढ़, तो दिल्ली में जो है अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं 81 ग्रुप चल रहे हैं कम से कम, वैसे तो ज्यादा होने चाहिए, 7 साल हो गए, 6 साल कम से कम, 2005 में शुरू किए जी। So there are 81 groups in Delhi, though we wish we could have more. इधर नीचे मेंशन किया है, साउथ दिल्ली में 35 ग्रुप्स, 35 ग्रुप्स इन साउथ दिल्ली, और वेस्ट दिल्ली पंजाबी राज से भी इस देश के सब मुरारी प्रभु जो वहाँ 31 ग्रुप, एक मंथ दिखाएंगे सबको, हरि बोल प्रभु जी हरि बोल केशव जी आए हैं। और वहाँ 31 लगभग 32 ग्रुप्स जो हैं वेस्ट में, वेस्ट में चल रहे हैं, इधर है।
और ईस्ट दिल्ली में 13 ग्रुप्स लगभग, In East Delhi, 16 ग्रुप्स 16 groups in East Delhi. और उसमें से एक माता जी आए हैं कृष्णकांता माता जी हरदेश, और उनके पति जी राधाकांत प्रभु जी। तो आप लोग 13 ग्रुप्स जो हैं, ये सेक्टर सर्वे लीडर भी हैं और 13 ग्रुप्स चलाते हैं बहुत अच्छे से। He is a sector serve leader also, and he is running 13 groups. कृष्णकांता माता जी and राधाकांत प्रभु जी। ये कृष्ण भावनामृत की आग है, ये हर दिन एक ग्रुप शुरू कर सकती है, इतना हिम्मत है। We already have fire in them, and they are like fire only, and these groups are going to spread like fire there. और जितने भी माता जी वो 1 राउंड नहीं करती हैं, वहाँ जितने भी लोग भक्ति वृक्ष ग्रुप अटेंड करते हैं वो 16 राउंड करते हैं शुरू से ही। तो अभी भी उन्होंने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी किया, जितने भी ग्रुप्स हैं प्लस उनका जो वीकली प्रोग्राम चलता है, टोटल 1000 पीपल्स गैदर। So recently we celebrated a nice program for Janmashtami there, and there was a gathering of over 1000 people in that area. And I think that was 2 days before Janmashtami. Yes, 2 days before. Because Janmashtami festival was majorly celebrated in a temple only. बहुत सुंदर, इतना सुंदर कार्यक्रम था उसमें। मेरे को क्योंकि जब कभी-कभी जब बाहर के भक्त, हम बाहर और अंदर ना सोचें, तो कभी-कभी क्या होता है, बाहर रहते हुए भी उनके अंदर इतना उत्साह, उन्होंने 1 मिनट भी जो है खाली, जैसे टेलीविजन में ना, टेलीविजन में एक प्रोग्राम समाप्त हुआ उससे पहले दूसरा प्रोग्राम 1 मिनट बैठने नहीं देते, तो उसके उस हिसाब से 11-12 बजे तक कार्यक्रम चले और इतने रॉक कार्यक्रम थे उसमें। यानी ठाकुर जी ऐसे मोरपंखी में डांस कर रहे हैं, वो आया भी था, कीर्तन भजन भी था, उससे पहले उन्होंने भी गाया था और बहुत सुंदर सुंदर प्ले, इतना बढ़िया। उनको बोला कि सीडी बनाइएगा, नेक्स्ट टाइम उसको हम ब्रीफ करके दिखाएंगे इसमें बाद में। This program very well organized by them. It was like an uninterrupted program. There was no gaps and all. And at the same time, the program was so entertaining. Everybody was enjoying that program. There was kirtan, there were plays, there were dramas, and the program was full of entertainment for everyone. और नोएडा में भी ग्रुप्स चल रहे हैं, 15 ग्रुप्स गोइंग ऑन। 15 groups are going on in Noida. अभी सारे ग्रुप्स लीडर्स नहीं आए हैं, वैसे 70 लगभग 60 तक ही आए हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग सब लोगों को लाएंगे और भी लोगों को लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर, क्योंकि ये फर्स्ट कन्वेंशन है और इसकी पूरी तैयारी में भी नहीं आए थे। मेरे को तो पता भी नहीं था, मुझे बोलना भी है, मैं ऐसे ही भक्ति-वृक्ष कार्यक्रम की ऐसे ही ना, क्योंकि जो बहुत तैयारी करके बोला जाता है उसमें कुछ नहीं बोला जाता है। It was not known to me that I was supposed to speak in this program, but somehow, sometimes when you prepare, you don't speak so well. So for me, words like this, when I'm not so prepared, I speak better. और हमारे 81 ग्रुप्स में हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज ऑनर्स लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज ग्रेस कर्तो प्रभु जी और हिज ऑनर्स वेदव्यास प्रिय महाराज, तो ऐसे सभी गुरु महाराजों के डिसाइपल उसमें हैं। सब लोग सब एक साथ So in our group there are disciples of all gurus. In fact, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, His Grace Katu Maharaj, and His Holiness Loknath Maharaj and Vedas Prem Maharaj also. और कोई बचा है? हाँ, साहिबाबाद also. साहिबाबाद में भी 6 ग्रुप, 6 ग्रुप चल रहे हैं साहिबाबाद इन नियर गाजियाबाद। Sahibabaad, there are 6 groups going on. और उसमें से भी भक्त लोग आए हैं यहाँ पर, devotees from there. बहुत सारे भक्त लोग हैं साहिबाबाद, तो लगभग काफी लोग आए हैं, उनका भी धन्यवाद। नेक्स्ट, तो हमारी प्रेरणा कौन है? हमारी प्रेरणा जो है चैतन्य चरितामृत है और गुरु गोरामदेव है हमारी प्रेरणा, और नित्यानंद प्रभु है हमारी प्रेरणा। Our inspirations are Guru Garam, Nityanand Prabhu and Chaitanya Charitamrita. एंड भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, And Bhakti-vriksha Delhi Maharaj is also our advisors. और सभी भक्त वृंद। जब मैंने मैनुअल पढ़ा उसमें जब प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, सब कोट्स पढ़े, इतना सुंदर उसमें वर्णन किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी चीज को पढ़े या सुने वो उस चीज को अपने माइंड में उसको लागू ही नहीं करेगा, चाहे वो बहुत बड़ी अथॉरिटी क्यों ना हो, चाहे जीवीसी ही क्यों ना हो। अगर कोई चीज को कोई सुनेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा इसको शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये है क्या चीज।
The most important thing is that we must read all what is important. And when I read the course from the Bhakti-vriksha manual, the course which has been quoted by Srila Prabhupada, I was really inspired by them. Because this is actually what we should do and how we should preach. तो हमारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ज़रूरतें भी हैं। ज़रूरत यही है कि सभी मेंबर्स जो हैं आपस में मिले। ये हम लोग की रिक्वायरमेंट्स है जो मैं first requirement is all members should always meet. Members you mean by leaders or you mean by I was not clear. Leaders plus all members also. क्योंकि उससे जो है भक्ति-वृक्ष प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा, इसलिए ये जरूरत है, मैं इसलिए मेंशन करके लाया इसमें हम लोग। और गाइडलाइन भक्ति-वृक्ष जो मैनुअल है उसके हिसाब से ठीक से अभी मतलब एकदम प्रॉपर जैसा होता है चल रहा है पूरा 95%, तो 5% और जो है उसमें और बढ़िया से, ताकि हम चाहते हैं कि सारे ग्रुप लीडर्स भी मैनुअल पढ़ें, समय निकाल करके पढ़ें और जितनी भी मीटिंग्स होती है, जैसे महीने में मीटिंग होती है, रिपोर्ट लाते हैं, तो उसमें जरूर आए। इसीलिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखा, महीने में मीटिंग रखी है, महीने में क्यों 4 वीक का रिपोर्ट भी लाएंगे और ट्रेनिंग सर्वेंट को भी साथ में लाएंगे, ताकि वो भी फायदा रहे। ऐसा नहीं कि केवल अकेले आएंगे बाकी सबको छोड़ आएंगे, आप तो नहीं आए। We have a regular meeting in a month where all the servant leaders with their training servant leaders are supposed to come to the temple where they are properly trained and instructed on how to carry out these programs. तो ग्रुप में आपस में जितने भी ग्रुप्स हैं और भी दूसरे एरिया में जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, अम्बाला में भी, वहाँ से भी भक्त लोग हम लोग से मैनुअल लेके गए, वृंदावन के भक्त लोग भी मैनुअल लेके गए, नेक्स्ट टाइम उनको भी लाएंगे। वृंदावन में भी चल रहे, लेकिन वो इस बार हमको वो भी दिल्ली से ही लेके गए और बोल रहे थे मुझे आप लोग को रिपोर्ट दे देंगे। तो यही जो है इंस्पिरेशन है कि आदमी कहीं से भी हो, उसको फर्क क्या पड़ता है, रिपोर्ट अगर देंगे, रिपोर्ट देने से पता चलेगा कि वो व्यक्ति सिंसियर है और सीरियस है इस प्रोग्राम में। And these programs that the Ambala devotee in town north of Delhi, which is Ambala, devotees are taking the Bhakti-vriksha manuals from us, and there also they have already started this program. And even some of the devotees from Vrindavan have started this program in Vrindavan. और उज्जैन में भूल रहा हूँ मैं, वहाँ के अध्यक्ष महोदय जी का नाम क्या है, प्रभु जी, ग्रुप का डिस्टेबल उज्जैन नहीं, दूसरी जगह जोधपुर में भी, उज्जैन में भी, सब जगह से बोलते रहते हैं कि कब यहाँ आएंगे और भक्ति-वृक्षा सिखाएंगे। बहुत जगह बोल सुने हम लोग। All the devotees said we are receiving invitations from Ujjain and Jodhpur where we have been requested to come and start the Bhakti-vriksha program in their towns also. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हरदेश प्रेम पद्मनी माता जी भी, क्योंकि वहाँ वो लोग डेवलप करना चाहते हैं अनेक मंदिरों भारत में। तो आप हैं, आपके वेणुगोपाल प्रभु जी हैं, और भी इस देश कौन थे प्रभु जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहूँगा यदि में कभी आए। So I would like to invite this conveyed also that he should come to Delhi and we can train us there in the program nicely, because I like his presentation very much. और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, जहाँ हम लोग को इम्प्रूवमेंट्स भी चाहिए, इसमें मेंशन है कि सभी भक्ति-वृक्ष सर्वेंट लीडर जो हैं, ग्रुप लीडर्स, ऑर्गेनाइजर्स, सर्किल सर्वेंट लीडर्स, ये वहाँ पर स्थापित हुए। हम चाहते हैं कि अभी जल्द से जल्द, क्योंकि इतने ग्रुप्स तो चल रहे हैं, ये सारी चीज स्थापित हो भी रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए still in the process of following the whole process of trying to get the training servant leaders at the Chakrapatis and all organized in the way that's said in the manual. जितने भी ग्रुप्स मेंबर्स हैं और ग्रुप लीडर हैं, उनके लिए दर्शन सर्टिफिकेट का ये भी जो है अभी रिक्वायरमेंट्स है, हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसमें भी, वो भी हम लोग सोच रहे हैं। नेक्स्ट Oh yes, 7 more Bhakti-vriksha group in Rohini. There are 7 more Bhakti-vriksha groups in Rohini. Yes. तो वहाँ से भी प्रभु जी आए, अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कोई एक आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बोल सकते हैं। I think you can invite Krishna. Yes, yes, कृष्ण मुरारी को आएंगे? हैं? हाँ, 7 भक्ति-वृक्ष ग्रुप जो है रोहिणी में चल रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से लिखा हुआ है।
वृक्षेर अंग है सब सचेतन बाड़िया व्याकुला सब सकल है. So this is some result of Bhakti-vriksha and Namat program in Delhi. Is Delhi temple stood first in 6 years in Bhagavad Gita distribution temple Pajayabad. Pajayabad first in 5 years in what is this? Medium temple. Medium temple. Yes, medium temple. So our Delhi temple has stood first in 6 years in Bhagavad Gita distribution, and the Pajayabad temple has stood first in 5 years in the medium temples. So Prabhupada desires 11 temples in Delhi NCR, Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon, Bahadurgarh, Noida, Delhi, EOT, Pajayabad, Rohini, Dwarka and Panchshir. Many will come soon. BPS, IDF, IFS is being running everywhere. तो अंत में जैसा कि यहाँ पर है, यही वृक्षेर अंग है सब सचेतन बढ़िया व्याकुल सबे सकल भुवन. तो हमारी भी यही इच्छा है. मैं भी आप सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, गुरु वरांग और गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हम सभी निमित्त बने और घर घर में एक प्रोग्राम हो जाए. क्योंकि आज देखिए मैकडोनल्ड खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं, वो खुल एक जगह पर उपलब्ध हैं. रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस दिस एंड दैट, घर फोन. तो हम चाहते हैं कि हमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर तो बढ़िया रहे. जैसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप में मत जाना, उस ग्रुप में मत जाना, उसका संग मत करना. सब 4 नियम पालन करने वाले हैं. इसका संग मत करना, उसका मत करना. और दिन भर वो 4 नियम तोड़ने वालों का संग करना मार्केट में या ऑफिस में, वो करना. इसका संग मत करना, उसका संग. बट ये क्या नॉनसेंस है बताइए. हमने बेसिक प्रिंसिपल ही आज जो है, आज हम ज्यादा समझदार हो गए हैं. आज वो जो 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले जो एक मूवमेंट का वो था ना, तो अनाड़ी को खिलाड़ी बना दिया जाता है, खिलाड़ी को अनाड़ी बना दिया जाता है. समझ रहे नहीं? तो तब क्या होता है, फिर एक प्रोसेस से जो है चीज आगे नहीं बढ़ती है, जो मैं फील करता हूँ कभी कभी चीज को. तो आदमी को अगर अपने से बड़े का आशीर्वाद लेकर के हम इतना बड़े शास्त्र, बड़े प्रवचन पढ़ते हैं, लेकिन फिर किसी के हम उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, तो क्या फिर कहाँ आगे बढ़ सकते हैं? पहले हम तो नए भक्त का भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे. And we humbly pray for blessing of Sri Guru and Gauranga Vaishnavas in this attempt. And there should not be any discrimination. We should always strive for Vaishnava association and never discriminate for any Vaishnava association. मेरे को कितनी दफे कितने भक्त लोग ये यहाँ तक बोलते हैं कि प्रभु जी हमें मंदिर आने ही नहीं दिया जाता है, मंदिर मत आइए. तो हमें बड़ा दुख लगता है. मैंने कहा ये मंदिर तो केंद्र बिंदु है सारी चीज का, तो क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि मंदिर बाहर सब्जी मंडी जा सकता है फ्रीली. वो एक बात बता रहे हो, ठीक है कि नहीं? वो नौकरी करने जा सकता है. मंदिर में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे भक्त हरिनाम ही देगा, कोई इधर उधर डिबेट नहीं करेगा, किसी को भी कभी नहीं कर सकता है. तो सभी भक्तों को मंदिर से जोड़ना. भक्ति-वृक्ष कार्यक्रम क्यों हुआ है सक्सेस? क्योंकि इसमें मंदिर से तार सब जुड़े हुए पूरा. हम चले जाएंगे कोई चिंता, हम अपने से ही क्यों जोड़ते हैं किसी को? मेरे में क्या रखा है ऐसा बताइए. जब भगवान को छोड़ देते हैं तो मेरे में क्या है? सोचने की बात है. लोग भगवान को छोड़ के हम यहाँ आ गए हैं, तो हमें जो है मंदिर से जोड़ना है. और सभी वैष्णवों से, अलग अलग वैष्णवों को भी बुलाना से क्या होता है, भक्तों को जो है इंस्पिरेशन मिलता है. ये बहुत जरूरी है, जो मैं अपने हृदय से कहना चाह रहा हूँ. Prabhuji said that he realizes that the basic sense of this program is that all devotees should finally connect to the temple, and no one should be prevented from going to the temple. Sometimes we feel some devotees are encouraged not to come to the temple, which is not good. तो मैं यही अंत में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि घर में जो है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, सर्वत्र प्रचार भइबे मोरो नाम. ठीक है कि नहीं? गली कुछ में हो गया है, लेकिन अभी भी बचा है. दिल्ली तो इतना बचा है, अगर एक ही सेक्टर में चले जाओ, वहाँ कितने फ्लैट्स हैं, पता चला वहाँ कितनी जगह है ही नहीं. दिल्ली में सच में करोड़पति तक जा सकता है. इतना स्कोप है. बस सारे भक्त मिल जाएं आपस में, सब एक दूसरे को क्या करें, सहयोग करें, तो ये करोड़पति तक जा सकता है. इसमें लाखों ग्रुप बन सकते हैं, लाखों, और तब जल्दी प्रचार होगा. The idea is that we can reach Lavan Delhi everywhere, and in fact, you go to any part of Delhi, in one corner of Delhi, there are thousands and thousands of people staying. So there is a lot of scope for
preaching there. प्रचार बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है, बहुत भक्त बन रहे हैं, लाइन में भी हैं, लेकिन अभी तृप्ति नहीं है अभी भी। क्यों? और आने चाहिए, क्योंकि Prabhuji said there are many devotees in Delhi, but somehow we are still not satisfied. We want maybe the whole of Delhi to become the devotee center. Thanks, Prabhuji. Prabhuji, your question? Yes. मेरा प्रश्न है कि आप जो तरक्की कर रहे हैं भक्ति-वृक्षा में, काफी अच्छी बताया आपने, लेकिन आपको एक बताइए कि लोगों को कैसे आप भक्ति-वृक्षा में लाते हैं? तो मैंने ऐसा ही सच बताऊं, दिल्ली में इतना बड़ा मंदिर है, हमारे मंदिर को ही देख के लोग सब फिदा है। पहली बात तो ये है, मंदिर में आते ही वहां ग्रुप बन जाते हैं। मैंने जहां भी बोला है तो कठिनाई नहीं आई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में कैसा है, कठिनाई अंदर से हो सकता है आई हो, लेकिन बाहर से सब तैयार है। अभी भी 10 ग्रुप एकदम रेडी है, 10 जगह गौतम नगर में तैयार है, सरिता बिहार में 2 लोग तैयार है, एकदम करने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत जगह आरकेपुर में भी जस्ट 64 वीक कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें 4 ग्रुप और बनने वाले हैं। तो ग्रुप तो इतने हो जाएंगे, तो बाहर से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है, लोग आते हैं, सब जानते हैं और काफी कॉम्प्लिकेशन है, तो सब तैयार हो जाते हैं। उनको चाहिए बल्कि घर में कोई एक शुभ प्रोग्राम करे। और दिल्ली में ज्यादा इसलिए भी लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि वृंदावन नजदीक है, हरिद्वार नजदीक है, वो ऑलरेडी भक्त हैं हस्तिनापुर में। तो मुझे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, सच में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वो लोग तैयार है। वो Prabhuji saying that the question was that how do devotees join temple in Delhi? What is the thing that we do to attract them? And the Prabhuji is replying that Delhi already has such a nice and a beautiful temple that people get attracted naturally there. And all the people are prepared. Only thing is we just have to go and everything is already ready and set up there. Only thing we just have to make some endeavor and start. सच बात है ना कैसे बोला प्रभुजी, हम नहीं करें बल्कि हमारे अंदर आलस आ जाता है, सही में नहीं तो इतना है स्कोप है। सच बात है इसे तो कृष्ण प्रभु हरि बोल। थैंक्स, धन्यवाद बहुत बहुत है। हरे Thank you very much for your outstanding presentation. I was thinking about if we have the leader like Deena Dayaal and all the leaders we hear today, with such a charisma, very easily Bhakti-vriksha will spread all over the world, very easily in the subsequent years.